সব কিছু আছে আমার, ছিল, এখন নাই। কি আপনার ছেলেরা আপনাদেরকে ছাড়ে চলে গেছে? ऐसा निकम्मा बेटा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी। হ্যাঁ, ছেড়ে চলে গেছে। তার খুব অসুবিধা হচ্ছে, তার কাছে পয়সা কড়ি নেই, আমাদের খেতে দিতে পারছে না। ऐसा औलाद होने से तो मर जाना, कोख में मर जाना बेहतर है। বউ খুব খারাপ। আমাদের সঙ্গে এখানে ছিল, আমাদের এক বেলা করে খেতে দিতে 2 চামচ ভাত, আলু সিদ্ধ ভাত। ছেলের সামনে পরে বলতো, ছেলের কোনো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। ऐसा लड़के समाज में इसका जीने का भी कोई हक नहीं है। दोस्तों, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, तो कितनी खुशियां मनाई जाती है। ढोल बजते हैं, थाली बजती है, तालियां बजती हैं, बधाइयां बांटी जाती है, और माँ बाप जो है वो फूले नहीं समाते हैं। उसके पालन में, पोषण में, शिक्षा में वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अपनी मेहनत की कमाई जो है, खून पसीने की कमाई है, वो लगा देते हैं। माँ रात भर भले ही भिजे में सो जाए, बेटे को वो सूखे में सुलाती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर ये हाल रहा तो लोग बेटा नहीं मांगेंगे भगवान से। लोग कहेंगे कि भगवान संतान के रूप में हमें बेटा मत देना। और ये कड़वी बात है, और ये कड़वी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमें कभी कभी ऐसे बेटों के साक्षात्कार हो जाते हैं, ऐसे बेटों की करतूतों का पता चलता है, तो आत्मा जो है वो रोने लगती है। ये भूल जाते हैं कि भारत श्रवण कुमार का देश है, भारत राम का देश है। लेकिन अब वो भारत नहीं रहा। अब ऐसा देश है जब बेटे बहू बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी जमा पूंजी को बेचकर खा जाते हैं। ऐसा ही वाक्यांश मैं आपको दिखा रहा हूं, दर्द भरी कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं, सिलीगुड़ी के देवीडांगा उत्तर पलास रोड से दिखा रहा हूं। मेरे पीछे आप देखेंगे, मेरे साथ जो है ये सज्जन पुरुष है, बुजुर्ग लोग, 70-72 से ज्यादा की उम्र हो, 76 इनकी उम्र है। माता जी है बगल में, ये देख लीजिए, ये दोनों हैं जिनको इनका जो पुत्र है, इनका जो बेटा है, वो इस बुढ़ापे में छोड़कर चला गया है। पूरा क्या मामला है मैं दादा से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे बता दूं, चूंकि ये बंगला में बोलेंगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनको हिंदी नहीं आती है, मुझे बंगला नहीं आती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। हालांकि मेरे साथ इनके जो मकान मालिक, जहां पर ये बेटा घर में भाड़ा देकर इन्हें छोड़कर चला गया, वो जरूर है भाई साहब लोग। इनसे जरूर मैं बातें पूरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दादा কি নাম আপনার? আমার নাম চিত্তরঞ্জন সেন। বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে চাকদা, লালপুর চৌরাস্তা, লালপুর পূর্বপাড়া। আচ্ছা, মানে কলকাতার পাশেই আছে। কলকাতার থেকে 80 কিলোমিটার এ পাশে, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট। আপনার এজ 76। হ্যাঁ। তো ছেলে কবে আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসছিল শিলিগুড়ি? নিয়ে আসছিল 2 বছর আগে। 2 বছর আগে নিয়ে আসছিল। ওইখানে তো আপনার সব বাড়ি ঘর সব ছিল? সব কিছু আছে আমার, ছিল, এখন নাই। There will only be one insignia. কি করেছে, কি হয়েছে? ওই ব্যাংকের থেকে 10 লাখ টাকা লোন নেওয়া ছিল, বরোদা ব্যাংকের থেকে ছেলে নিয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা আর কিছু জানতাম না, ছেলেতে নিয়েছে এবং সুদের পর সুদ দিয়ে আসছে কয় বছর ধরে সমানে। ব্যাংকে একবার বলছে এই টাকা দাও মিটে যাবে, টাকা দিচ্ছে, আবার যখন সে টাকা নিয়ে যাচ্ছে, আমি দোকান বিক্রি করে টাকা দিয়ে গেছি, সে টাকা নিয়ে গেলি বলছে হবে না, পুরো টাকাই লাগবে। তা আমরা যে এত টাকা দিছি তার কোনো নেই। আমি একবার দোকান বিক্রি করে গেলাম, বললো যে 8 লাখ টাকা দিলে মিটে যাবে। তখন বললো কি হবে না, 8 লাখ টাকা হবে না। আমাদের উকিল সঙ্গে ছিল, তারপরে উকিল যে জোর করে 3 লাখ টাকা জমা দিয়ে আসলাম। আমি বললাম আমার অরিজিনাল টাকার থেকে এই 3 লাখ টাকা জমা দাও। আর কোর্টে যখন কেস উঠেছিল তখন ওখান থেকে রায় দিছিল 25, যে টাকাটা নিয়েছে তার 25% টাকা একটা ড্রাফট করে জমা দিতে। আমার ছেলে 75,000 টাকা জমা দিছিল, তারপর তো সুদ দেওয়াই হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাংকে ওরা বারবার চিঠি করছে, চিঠি আছে ছেলের কাছে। চিঠি এটা ব্যাংকের কথা আছে কি, এটা খুব বড় কথা হয়ে যাবে। আমি এটাই জানতে চাইছি কি আপনার ছেলেরা আপনাদেরকে ছাড়ে চলে গেছে? হ্যাঁ, ছেড়ে চলে গেছে। কেন? কেন, তার খুব অসুবিধা হচ্ছে, তার কাছে পয়সা কড়ি নেই, আমাদের খেতে দিতে পারছে না। বললো যে কাজে যাচ্ছি, তাই বলে চলে গেল। ও তো বিয়ে হয়েছে? বিয়ে হয়েছে,
ওর বাচ্চা আছে 14 বছর, এই পড়লো 14 বছরে। বউ আছে? হ্যাঁ বউ আছে, বউর 34-35 বছর বয়স ওর। বউ বউ খুব খারাপ, বউ খারাপ। বউ খুব খারাপ। বউ আসার পরে তো আমার সংসারে, নাম কি ওর বউয়ের? ওর নাম হচ্ছে রাজনীতা সেন। আচ্ছা, ছেলের নাম? ছেলের নাম মঞ্জয় সেন। মঞ্জু সেন। হ্যাঁ, তো ওই বউ কি আপনাদের সঙ্গেই ছিল এখানে? আমাদের সঙ্গে এখানে ছিল। আমাদের এক বেলা করে খেতে দিতে 2 চামচ ভাত, আলু সিদ্ধ ভাত, তারপরে एक समय দিনে একবার। देख रहे हैं बहू की करतूत। इनका कहना है कि दिन में एक बार केवल 2 चम्मच भात, और वो भी आलू सिद्धो यानी उबले हुए आलू के साथ में दोनों को देते थे, इनको और इनको। तो आपने किसी बोलते ना? না, আমাদের কিছু বললে উল্টো পাল্টা সবসময় অপমান করতো আমাকে। আমাদের দুইজনকে অপমান করতো, চলে যাও, বাড়িতে বেরোয় যাও, ভিক্ষে করে খাও। ছেলের সামনে পরে বলতো, ছেলের কোনো কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু কাকু আপনার তো অনেক প্রপার্টি ওইখানে ছিল। হ্যাঁ, আপনাদের বাড়ি, সেখানে তো আপনার প্রপার্টি ছিল, আপনার নিজের আমার বাড়ি, নিজের নিজস্ব প্রপার্টি বাড়ি, সবকিছু আমার। দোকান ছিল। হ্যাঁ, দোকান ছিল, দোকান আমার ভাড়া ছিল। হ্যাঁ। আমি নিজের দোকান করেছিলাম, হ্যাঁ। নিজের টাকাতে কিনে সেই দোকান বিক্রি করে ব্যাংকে টাকা দিতে গেছিলাম। তা সেই ব্যাংক আমার সঙ্গে ধনে মানে ছেলের জন্য আপনি দোকান বাড়ি সব বিক্রি করে দিলেন? বিক্রি করে দিচ্ছি, ওই ছেলে আপনার কিচ্ছুই এখানে নেই। চলে গেছে? হ্যাঁ, আমার 55 বছরের যে ধরে ইনকাম করছি, 55 বছরের যা ইনকাম, ওই বাড়ি দোকান যা যা সবই ছেলের জন্য করেছি। আর ছেলেতে টাকা চাইছে, দিয়ে দিছি। আমি নিজের জন্য কিছু রাখিনি। লাস্টে আমার 3,40,000 টাকা ছিল, 3,40,000 টাকাও লাস্ট ওকে দিয়ে দিছি। আর এখন একটা টাকা আমার কাছে নাই। আচ্ছা, কি করে আপনার এখানে সংসার চলছিল? এখানে হ্যাঁ। উন্ডা চালাচ্ছে। হ্যাঁ? এই যে বাড়ির মালিক, এই বাড়ির মালিক আমাদের খাওয়াচ্ছে। এই দিচ্ছে? হ্যাঁ, কতদিন ধরে? এটা তো আজ প্রায় 3 মাস। এই দিচ্ছে সব? এই 3 মাস ইনরা তো দিচ্ছেন, এর আগেও দিয়েছেন। ওই যখন একবেলা খেতাম, হ্যাঁ। ওই একবেলা 2 চামচ, হ্যাঁ। তখনও উনরা আমাদের খেতে দিয়েছে। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ছেলে কাজ কি করে আপনার? কন্ট্রাক্টরি করতো। হ্যাঁ। এখানে এসেও একটা কাজ করেছে, সেখানে কাজটা কমপ্লিট করতে পারিনি। হ্যাঁ। না পারে যে কাজ করেছে প্রিন্সিপাল নিজে, যে কাজটা করা হয়েছে সেই কাজের টাকাটা নিয়ে ও চলে গেছে। আর আমাদের বলেছে টাকা পাইনি, অথচ পুজোর আগে টাকাটা নিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার সময় আমার হাতে 2300-2500 টাকা, ওই রাতে 200 টাকা দিয়ে গেছে। এই পর্যন্ত। মানে 3 মাস আগে अचानक চলে গেল, কিছু বলে গিয়েছে? না, আর কিছু বলেনি। ওর ফোন নম্বর আছে, আপনি ফোন টোন ওকে করেছেন? ফোন ধরে না। ধরে না মানে ধরে না, না পাওয়া যায় না? না না, সুইচই অফ। সুইচ অফ আছে। ওর বউর সবারই সুইচ অফ। तो देख रहे हैं यहाँ पर कैसी विकट स्थिति है। সব থেকে খারাপ। বিয়ের থেকে আজ পর্যন্ত আমার ছেলেকে কোনদিন রাত্রে ঘুমাতে দেয় না। চিৎকার চেঁচামেচি, পাড়ার লোক পর্যন্ত মানে বিপদে পড়ে যায়, ঘুমাতে পারে না, এত বাজে। এখানেও তাই। এখানে ঘর তো আছেই, ওই রাস্তায় ওখানে দোকানদাররা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে, ওই নাকি আপনার বৌমা? আরে হ্যাঁ। বলে কি এখানে চিৎকার করে করে স্বামীর সঙ্গে এরকম ঝগড়া করে, এরকম ভালো গালাগালি দেয়, এত বাজে। तो देख लीजिए यहाँ पर ये स्थिति है। ये बुजुर्ग जोड़ा जो है सैन साहब का और इनकी पत्नी ने छोड़कर इनका जो पुत्र है वो चला गया है, और उसके बाद से ये लोग यहाँ पर 3 महीने से यहाँ पर असहाय जीवन ये यहाँ पर जी रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ अब है प्रमोद छेत्री जी, जो इस घर के मालिक हैं। इनके घर में ये लोग भाड़ा रह रहे थे। पूरी कहानी इनसे भी जानते हैं। हालांकि इससे पहले जो सैन साहब है उन्होंने बता दिया कि किस तरह से ये सहृदय व्यक्ति जो है इनकी मदद कर रहा था। रिटायर फौजी हैं छेत्री साहब, इसलिए भी कह सकते हैं कि इनके दिल में दया दर्द तो पक्का ही होगा। छेत्री साहब, क्या मामला है इनका? मामला इस प्रकार है सर कि अभी ये जो बुजुर्ग मेरा तो पिताजी समान ही है और माताजी समान है। मैंने इनको जब देखा है, मैं जब रिटायर आया था तो इन लोग घर में आ चुके थे। तकरीबन 1 साल 10 महीना के करीब हो गया है। इन्होंने अभी तक 2 ही महीना का भाड़ा दिया है। इनका लड़के पेशे से कॉन्ट्रैक्टर था, और कॉन्ट्रैक्टर 2 साल में मात्र 2 ही महीने का भाड़ा दिया? 2 ही महीने का भाड़ा दिया इन्होंने। ऐसे ही रह रहे हैं? जी, ऐसे रह रहे हैं। और जब भी मैं तो इनको ग्राउंड फ्लोर इनको दे रखा है, बूढ़ा आदमी है बोल के ऊपर चढ़ नहीं सकता, नीचे आ नहीं सकता बोल के ग्राउंड फ्लोर दे दिया था। हम लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं। और इनके घर में इनके
ऐसा निकम्मा बेटा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी। इस उम्र में अपने माँ बाप को इन लोग ना खाना ना पीना, कुछ भी ना दवाई, कुछ भी खर्च नहीं है इनका। तो ऐसा हालत में छोड़ के जाना ये उचित नहीं है। इस ऐसा लड़के समाज में इसका जीने का भी कोई हक नहीं है। इनका एक ही लड़का है। इनकी बहू कैसी थी मैडम? एकदम ही खराब, एकदम ही खराब। 3 टाइम खाना देना चाहिए। एक बहू का मतलब कर्म है ना कि 3 टाइम खाना दो। एक ही टाइम देते थे, एक टाइम भी बोलते थे एक ही टाइम खाना है, वो भी आलू के साथ देता था। वो आलू, हाँ, तो भात और आलू खाली। और हल्ला बहुत करता था। हल्ला इतना ज्यादा करती थी, गांव गांव में रो रो के चलना। उनका एकदम ही खराब आदत था, बहुत ही खराब, एकदम ही। तो ये तो वहाँ बाहर से आए थे तब ठीक थे क्या पूरा परिवार? नहीं, अभी हमको तो 1-2 महीना बाद ही पता चलता है। कोई भी नया आदमी आता है तो 1-2 महीना बाद ही पता चलता है। तब जब भी पता चला हमने इनको बहू को समझाया अच्छी तरह से, देखो इनका एक ही लड़का है और इन्होंने जितना भी बुढ़ापे में जो भी इन्होंने आज तक कमाया है, बहुत समझाया इनको। फिर इनका छोटा सा एक बच्ची था 14 साल का, इनका स्कूल वहाँ से क्लास 6 पढ़ के आया था। तो अभी सभी को पढ़ाई तो अभी के ज़माने में बहुत ज़रूरी है बोल के मैंने रोजेस एकेडमी में अपने पैसा दे के मैंने पैसा दे के इनको बुक्स खरीदाया, एडमिशन फ़ी दे दिया। 1 साल तक मैंने पढ़ाया इनको, बेटी को। उसके बाद किताब उताब सब खरीद दिया। फिर इनका लड़के ने बोला मेरे को आके, भैया मैं यहाँ एक KTGM कॉलेज में मेरे को एक काम मिल गया है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, कुछ पैसे की मदद चाहिए मुझे। तो मैंने सोचा यार इनका अभी इतना दिन से भाड़ा भी नहीं दे रहा है, कुछ खाने का भी नहीं, तो मेरे को देने से अच्छा रहेगा इनका, क्योंकि मतलब उधार हो जाएगा। भाड़ा की जगह पर और ऊपर से पैसे और दे दिए इनको? अब दे दिया, थोड़ा सा पैसा दे दिया मैंने, ताकि इनका लाइफ सेटल हो जाए। ताकि बूढ़ा माँ बाप खाएगा कहाँ से, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। दिन तो सभी का खराब आता ही है, तो फिर दिन बदल न जाए। सब सत्य है सर ठीक है, सब सच है। जो बोल रहे हैं हाँ, सब सच बोलता है, सब सच बोलता है। हमने अपना जिंदगी में ना कभी भी ऐसा कहानी सुना नहीं। मतलब पिक्चर में देखा था, हमने वीडियो में देखा था, फेसबुक में देखा था, लेकिन आज मेरे घर पे, मेरे आंगन पे ये सब देखना पड़ रहा है मुझे। मैंने ऐसा औलाद होने से तो मर जाना, कोख में मर जाना बेहतर है। मुझे नहीं ऐसा एकदम ही ना हो, ऐसा औलाद ही पैदा ना हो। और प्लीज मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए। पब्लिक इनके बेटे के फोटो दिखाएंगे? पब्लिक से मुझे रिक्वेस्ट है, प्लीज इनको ढूंढिए, फोटो के साथ भेज रहे हैं आपके पास हम लोग वीडियो दिखाते हैं। इनके लड़के की फोटो दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोग को भी कहीं देखे। फिर बता देता हूँ, कलकत्ता के पास में जो क्या बोले आप, कौन सा जगह, चकुलिया ना, चाकदा जो जगह है, वहां पर ये वहां के नदिया डिस्ट्रिक्ट के निवासी है। वहीं पर इनका घर है। इनका घर भी अच्छा खासा घर था, व्यापार था इनका। और इनके बेटे की हम फोटो आपको दिखा रहे हैं। अगर ये कहीं पर भी हो तो उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। दिखा दीजिए, दिख रहा था ना, ये आप देख लीजिए, ये मोबाइल में दिखा रहे हैं हम आपको। ये फोटो है इनके पुत्र की, जिसका नाम क्या से? मंजय सेन ये है, जिनका ये आप फोटो देखिए। ये इनकी माताजी है, ये इनके पिताजी है। और इनका कहना है कि 3 महीना पहले इनका जो पुत्र है वो इन्हें छोड़ के चला गया है। और ये इनकी बहू बताई जा रही है, आप देख सकते हैं। ये इनकी बहू की भी फोटो है। कहीं पर भी हो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, सारे इंसानियत के नाते। देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते इनका हेल्प कर दीजिए। आपने ছেলের नाम और বউয়ের नाम क्या है? ছেলের নাম মঞ্জয় সেন, বৌমার নাম রাজনীতা সেন রায়। और আপনার এই জায়গাটার नाम কি বললেন? চাকদাহ নদিয়া। चाकदा नदिया निवासी है, ये बता दो मंजय सेन। और पैसे से ठेकेदारी का काम करते हैं। पिछले 3 महीने से इनको छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि उनका फोन ऑफ आ रहा है। फोन করেছেন আপনি? হ্যাঁ, ফোন আমরা সবাই করেছি, সুইচ অফ। না, বৌমার না, কারো ফোন পাওয়া যাচ্ছে না। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा फोन के लिए? काफी बार, बहुत ज्यादा काफी बार नहीं मिल रहा फोन, नहीं मिल रहा है। एक छठ पूजा के दिन एक बार जैसे मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि आपने जिसको कॉल किया था वो अभी ऑन है। हाँ। तो मैंने चंपासरी में, मैं गाड़ी में बैठा था, तो मैसेज आया, मैं मैसेज देखा तो मैं तुरंत कॉल लगा लिया। 1-2 रिंग बजा, उसके बाद काट दिया। फिर उसके बाद इसका कोई मतलब आपका नंबर सेव होगा उसमें? सेफ है, सेफ है। आपका भी नंबर सेव जी होगा, है, क्यों इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे। उठाइए
नहीं रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी ये वीडियो आप लोग देखेंगे, प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये अभी इस उम्र में माँ बाप को छोड़ के जो लड़के ने किया है वो किसी का भी हो नहीं सकता। इनके पास इसलिए कुछ मैं भी आप नहीं है, सभी से कुछ भी दरखास्त नहीं करता है। हूँ कि इनकी माँ बाप को सहारा के लिए भले ही वो घर वापस आ जाए और अपने माँ बाप को सही ढंग से देखे। गलतियां सबसे होती है, मगर इस तरह से छोड़ के जाना ये उचित ठीक नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंजय सेन भी अपने घर में आके अपने माँ बाप को ले जाए। मैं आज इनको अपना गाड़ी भाड़ा पूरा सब टिकट टुकट काट के रात्रि का भोजन, सुबह का भोजन सब मैं इनको प्रोवाइड करके कलकत्ता जाने वाले बस में चकदा तक के लिए मैं इनको बैठा रहा हूँ। आज शाम को हमने पुलिस में भी जाके कंप्लेन करने की कोशिश किया था अपना प्रधान नगर थाना में, मगर ये यहाँ का केस नहीं है बोल के हमने भरबोली ऐसे किया, एफआईआर कोई दर्ज नहीं हुआ। भरबोली हमने ऐसे साहब से बात किया, कंसर्न जना दिया कि ऐसे जना दिया था। काकू स्वयं गया था, काकू से भी पूछ কাকু सकते हैं। আপনি আজকে যাচ্ছেন আজই যাচ্ছি। पुलिस के पास गए। পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন আপনি? হ্যাঁ, কি বললো পুলিশ? পুলিশে বললো যে ওখানে ছাড়া আমাদের এখানে তো কিছু করার নেই, আপনার ওখানে লোকাল ব্যাংক বা ওখানে থাকার জায়গা ওইখানেই সব কিছু করতে হবে। তো আপনি আজকে যাচ্ছেন হ্যাঁ কাকিমার সঙ্গে? হ্যাঁ, আহ, আর মানে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই নিয়ে? যাটার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কিন্তু ওখানে যে এখন কি পরিস্থিতি আমরা থাকবো না থাকবো, কে কি করবে না করবে জানি না। কারণ ওখানকার লোকের ও ছেলেতে কার কার দিয়ে টাকা নেছে না নেছে, আমরা গেলেই হয়তো হয়তো আমাদের ধরবে বা আমাদের দুটো বাজে কথা বলবে বা আমাদের পরে একটা কোনো রকম কোনো কিছু করবে। সেইটা চাই জনগণের কাছে যে কেউ যেন আমাদের পরে কোনো রকম দুর্ব্যবহার না করে, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। আপনার যে সেখানে আপনি যাচ্ছেন, হুম। तो हमारे- देखिए काकू ने ये जरूर अभी से रिक्वेस्ट कर दी, इन्हें डर सता रहा है कि ये जब अपने गांव जाएंगे वहां पर वहां के लोग इनसे दुर्व्यवहार नहीं करें, क्योंकि हो सकता है इनके बेटे ने और भी बहुत लोगों से कर्ज ले रखा हो, तो इनके साथ दुर्व्यवहार न हो, इसी की अपील उन्होंने की। और ये साथ ही अभी आज यहाँ से चले भी जाएंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था इनके द्वारा कर दी गई है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि देखिए हमने इनके पुत्र की फोटो आपको दिखाई है और इनके पुत्र वधू की फोटो भी आपको दिखाई है। जहां भी अगर ये कहीं आपको दिखते हैं, या मैं खुद खबर समय की तरफ से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो इनके पुत्र हैं मंजय सेन, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ये कहीं देख लेते हैं, कोई आपको दिखा देता है, तो प्लीज आप अपने माँ बाप को भाई आके संभालो, क्योंकि इस उम्र में आप जिस माँ बाप ने अपने जीवन की सारी पूंजी आप पर लगा दी, आपके पालन पोषण में लगा दी, आप भी एक पिता हैं, तो आप सोचिए कि क्या बीत रही होगी इन बूढ़े माँ बाप पर, जो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, क्योंकि आज यहाँ से निकलेंगे, कल वहां जा रहे हैं, वहां पर कोई भी इनका ठोर ठिकाना नहीं है, तो इनकी क्या स्थिति होगी ये जरूर समझे। और अपने माँ पिताजी जो है इनको जरूर आप आके इनसे मिलने की कोशिश करो, और ज्यादा से ज्यादा भाई लोग आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो माँ की ममता और पिता का प्यार जो है ये कलंकित होता नजर आ रहा है। ऐसे में ऐसे पुत्र को जरूर एक बार ऐसा सोचना चाहिए, या फिर सबक मिलना चाहिए कि वो अपने कोई भी पिता कोई भी जो पुत्र है वो अपने कम से कम माता पिता को इस उम्र में छोड़कर न जाए। कैसी इनकी बहू थी, आपने देखा कि इन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था, इन भाई साहब की कैंटीन है वहीं से कुछ आता था, जो काफी कुछ आता था। काकू ने बताया कि क्या क्या ये ला के देते थे, तब ये लोग खाते थे। কি দিত কাকু? সিঙ্গারা, পোলাও, ফ্রাইড রাইস, ভাত, মাংস টাংস যাবতীয় সব কিছু, মোমো, হ্যাঁ আমাদের সব কিছু ওনারা যা আনতো সব কিছু আমাদের মানে দিত। আপনি খুব ভালো হেল্প করেছেন। হ্যাঁ এখন 3 টাইম কোন खिला रहा है कुछ अभी अभी এখন কে দেয়? এখনো 3 টাইম করে ওনারা খাওয়া দিচ্ছেন। दोस्तों काकू जो है वो चाकदा जा रहे हैं, और चाकदा के लोगों से भी इन्होंने अपील की है कि इनके साथ एक अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि काकू को भी ये सेन साहब को भी ये आशा है कि ये उनकी पुरानी पैतृक गांव है, पुरानी जगह है, वो वहां जाएंगे तो वहां पर देख पाएंगे, उनके जो रिश्तेदार है उनसे बात कर पाएंगे, कुछ ना कुछ करने की इस उम्र में भी वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने ये एक अंदेशा जरूर जताया है कि जब उनका बेटा इतने लोगों से कर्जा ले चुका, कहीं और भी लोगों से कर्जा ले चुका हो, तो कम से कम इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करे। কেন কাকু এটাই তো আপনার রিকোয়েস্ট আছে? হ্যাঁ, যে কেউ যেন আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করে, আমার উপর কোনো প্রেশার না দেয়। যে টাকা নেছে কেউ কোনোদিন আমাকে বলেনি। হ্যাঁ, কেউ যাকে দিয়েছে তার সঙ্গে নেই। হ্যাঁ, যে সঙ্গে যে তার সঙ্গে সে বোঝাপড়া করুক, আমাদের সঙ্গে কেন এরকম করবে? না আপনার সঙ্গে করবে না মনে হ্যাঁ হয় না? করবে। করবে হুম। আপনার মনে হচ্ছে? হ্যাঁ মনে না, আমি 100%।
দেখুন তো এখানে আপনার কিছু নাই, আপনি বললেন কি সবকিছু তো বিক্রি করে দিয়ে। হ্যাঁ, কিছু নেই আমার আশেপাশে। এই যে যেখানে যেখানে ফোন করছে তারা তো বলছে যে ও এখানে আসবেন, কিন্তু খুব সাবধানে, লোকে আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে। কার সঙ্গে কার কাছ দিয়ে টাকা নিয়েছে না নিয়েছে তো ঠিক নেই। আসলে তারা যারা টাকা দিয়েছে তাদের রাগ হতেই পারে, তারা এসে আমাকে বলতেই পারে, তারা বলতেই পারে যে আপনার ছেলে আমার কাছে টাকা নিয়েছে, টাকা দেন। বা এটা ছেলে হতে পারে কোথায় কাকু, আছে, আপনি এইসব যদি নিয়ে। এখানে দিয়ে যাচ্ছেন, ওইখানে যায় শুধু আপনি আগে থানাতে চলে যাবেন আর এটা কথা বলে আপনি যেতে পারেন। থানাতে যায় যদি रिक्वेस्ट করে कि এরকম কথা আছে, তাহলে থানা আপনার हेल्प করতে পারে। तो देखिए किस तरह से एक पुत्र अगर कुपुत्र हो जाता है तो इस तरह से बुढ़ापे में जीवन का जो अंतिम पड़ाव है उसमें इस तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। जहाँ बूढ़े माँ बाप को खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाने के दाने नहीं है, वहाँ उन्हें ये डर सता रहा है कि मोहल्ले के लोग आके लोग उन्हें और मारेंगे। तो ये आप सोचिए कितनी बड़ी विपदा इन पर आई है कि 3 महीना पहले बच्चा जो है या अपने परिवार के साथ इन्हें छोड़कर यहाँ से चला गया। 3 महीने से यहाँ असहाय पड़े हुए हैं और अब ये किसी तरह अपने गाँव जा रहे हैं, तो इन्हें यह भय सता रहा है कि कहीं वहाँ के लोग इन्हें प्रताड़ित ना करें, कहीं वहाँ के लोग इन्हें जबरन पैसे वसूली के लिए और प्रताड़ित ना करें। और बात दूसरा पहलू ये भी देखते हैं कि एक पुत्र कुपुत्र होता है, वो होता है, और एक ये भी है छेत्री साहब जिन्होंने इतनी मदद की। काकीमा আপনি কিছু বলবেন? কি বলবো আর বলতে পারছি না। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये बूढ़ी माँ फपक फपक कर रो रही है। बूढ़ा बाप परेशान है कि भूखे तो मर ही रहे हैं, अब लगता है कि कुपुत्र के कारण मार भी खानी पड़ेगी। और क्या युग आ गया है, कभी बेटों को लेकर सपने देखे जाते थे कि हमारा बुढ़ापा इतना अच्छा होगा, ये बेटा हमारा पालन पोषण करेगा, लेकिन अब स्थिति ये है कि बेटों के कारण माँ बाप को बुढ़ापे में भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। हमारी फिर रिक्वेस्ट है आपसे, अगर उनका पुत्र मंजय सेन, अगर जिसकी फोटो भी हमने आपको दिखाई है, पैसे से ये ठेकेदारी का काम करता है, अगर आपको कहीं मिले या आपको जानकारी मिले तो जरूर बोलिएगा कि अपने माता पिता को इस स्थिति से उन्हें लेके जाए, उबारे। हालांकि ये बता देते हैं ये तस्वीरें सिलीगुड़ी की है, लेकिन आज ये जो परिवार है यानी ये सेन और सेन मिसेस सेन जो है, आज ये लोग अपने गाँव यहाँ से रवाना जा रहे हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये कुछ जो इनका संपत्ति है या फिर इनका जो घर है वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने वहां पर भी सहयोग की अपील की है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।